السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نئے اتراکھنڈ کی تعمیر کی بات کرتے ہوئے جہاں کوئی قبضہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اعلان کیا کہ ریاست میں موجود تمام غیر قانونی مزاروں کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اپنی تقریر سے لیے گئے 42 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کو اپنے ٹویٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ہم دیو بھومی میں زمین جہاد کو پنپنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا اتراکھنڈ ہے اور یہاں کے اہلکار غیر قانونی طور پر بنائے گئے مزاروں کو منہدم کر دیں گے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ دیو بھومی اتراکھنڈ میں غیر قانونی مزاروں کو حکومت گرائے گی، یہاں ایسا سوچنا بھی منع ہے کہ کوئی غیر قانونی حرکت برداشت کی جائے گی۔ مغربی بنگال حکومت کی پولیس نے کولکتہ ہائی کورٹ میں دیے گئے اپنے حلف نامے میں واضح طور پر بتایا ہے کہ رام نومی کے موقع پر ریاست کے مختلف حصوں میں ہوئے تشدد کس وجہ سے ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 اپریل کو ریاست کے ہگلی ضلع کے ریشرا میں رام نومی کے موقع پر جھڑپیں اور تشدد کی آگ جلوس میں شامل لوگوں کی وجہ سے بھڑکی تھی۔ چندر نگر سٹی پولیس، جس کے دائرہ اختیار میں ریشرا آتا ہے، اس نے آج عدالت میں جھڑپوں پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے حقائق جاننے والے موثوق ذرائع نے بتایا کہ شرکا جلوس کے آغاز سے ہی مسلسل توہین آمیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کر کے مقامی لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق اگرچہ شروع میں جلوس میں شامل لوگوں کے ایک گروپ نے خود کو قابل اعتراض زبان استعمال کرنے تک محدود رکھا، لیکن بعد میں ان میں سے کچھ نے مقامی لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جلوس میں پولیس کی اجازت کے بغیر ڈی جے کا استعمال کیا گیا اور کچھ شرکا نے مہلک تیز دھار ہتھیاروں کی بھی نمائش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابل اعتراض زبان کے استعمال اور پتھراؤ سے مقامی لوگوں کو مشتعل کیا گیا اور انہوں نے جوابی کارروائی میں جلوس پر ہی پتھراؤ کیا۔ جب پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا اور کچھ پولیس گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ پہلی جھڑپ 2 اپریل کی شام کو ریشرا میں رام نومی کے جلوس کو لے کر ہوئی۔ زخمیوں میں بی جے پی ایم ایل اے گھوش اور کچھ پولیس افسران شامل ہیں، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ چھتیس گڑھ کے ضلع بھیم تارا میں 2 اسکولی طلبہ کے درمیان لڑائی فرقہ وارانہ اور پرتشدد ہو گئی جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئے۔ بعد ازاں پیش آئے جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک اور 12 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس علاقے میں خوف و دہشت پھیل گئی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے فورس کی بھاری جمعیت کو اس علاقے میں متعین کیا ہے۔ تاحال 9 افراد کو گرفتار کیا گیا اور دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایک 23 سالہ نوجوان کی موت پر برہم مقامی عوام نے سیکورٹی فورسز پر سنگباری کی۔ پولیس کے ایک سب انسپکٹر کے سر پر زخم آئے اور اس کی حالت ہنوز نازک بتائی جا رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آئی کلیان نے بتایا کہ 2 برادریوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور اس میں کچھ ہی دیر بعد شدت پیدا ہو گئی۔ ایک 23 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے بتایا کہ مقامی عوام کو کارروائی کرنے کا تیقن دیا گیا ہے۔ دیہاتیوں نے 11 افراد کی نشاندہی کی ہے جو لڑائی میں شامل تھے۔ ہم نے مقامی عوام کو تیقن دیا ہے کہ کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ چند افراد نے چند مقامات پر آگ لگا دی اور لاٹھیوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ گاؤں میں کشیدگی پائی جا رہی ہے لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ تقریباً 250 ماہرین تعلیم اور مورخین نے ایک عوامی بیان جاری کیا جس میں نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی NCERT کی نصابی کتب میں تبدیلیاں کرنے پر تنقید کی گئی اور الزام لگایا کہ یہ اقدام تفرقہ پسند اور معتصبانہ ایجنڈے کے تحت کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حذف کیے گئے اسباق کو فوری واپس لیا جائے۔ آج جاری کردہ عوامی بیان پر علمی برادری کی نامور شخصیتوں اور مورخین کے دستخط ہیں، جن میں رومیلا تھاپر، جیتی گھوش، مکھرجی، اپوروا آنند، عرفان حبیب، اپیندر سنگھ اور دیگر شامل ہیں۔ دستخط کنندگان نے کہا کہ نصابی کتابوں سے تازہ ترین حذف کردہ اسباق سے حکومت کا غیر تعلیمی اور معتصبانہ ایجنڈا بے نقاب ہوتا ہے۔ NCERT نے 12ویں جماعت کی سیاسیات اور تاریخ کی اپنی نئی نصابی کتابوں کے ایڈیشن میں مہاتما گاندھی، ان کے قاتل اور گاندھی کے قتل کے بعد راشٹر سیوم سیوک سنگھ پر پابندی سے متعلق مواد کو ہٹا دیا۔ عوامی بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تاریخ کی نصابی کتابوں سے ابواب اور بیانات کو ہٹانے کے NCERT کے فیصلے سے حیران ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصلے کو واپس لیا جائے۔ شری نگر جموں شاہراہ پر ہفتے کی شام کو مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو حادثے میں معجزاتی طور پر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق شری نگر جموں شاہراہ پر بانہال کے مقام پر مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو کی گاڑی کے ساتھ ایک ٹرک ٹکرا گیا، تاہم اس حادثے میں مرکزی وزیر کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی۔ پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ شری نگر جموں شاہراہ پر مرکزی وزیر قانون کی گاڑی کو معمولی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور مرکزی وزیر کو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچا دیا گیا ہے۔
अडानी ग्रुप घोटाला मामले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से जांच के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान अदम इत्तेफाक की कैफियत पैदा हो गई, जब एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी की जांच को काफ़ी करार दिया। वाज़ेह के शरद पवार ने गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार किया था। इसके बाद इनके बयान का हुक्मरान जमात के लीडरों ने हवाला देते हुए अपोजिशन से मुतालबा शुरू कर दिया कि वो शरद पवार की राय को मद्देनजर रखते हुए इस मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जांच से दस्तबरदार हो जाएं। उधर शरद पवार के इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना समेत कई लीडरों ने तबसरा किया है। कांग्रेस ने अपने रद्दअमल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का दायराकार बहुत महदूद है, यह वज़ीर-ए-आज़म और अडानी के दरमियान ताल्लुकात को सामने नहीं ला सकती। सिर्फ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से ही इसका जवाब मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। इसके पेश नज़र सभी अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना अस्पताल फिर से शुरू कर दिए गए हैं। जांच व सर्विलेंस सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज व सहूलियात दिए जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अजला में 11 और 12 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के लिए 75 नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। सभी अजला में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को शुरू करने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही सभी पॉजिटिव नमूनों की जेन्युइन टेस्टिंग कराने, बैरून मुल्क से वापस लौटने वालों की लाजमी तौर पर जांच, हेल्प डेस्क के क़याम और सरकारी व प्राइवेट इदारों में स्क्रीनिंग के अहकाम जारी किए गए हैं। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने हफ्ते के रोज कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1801 नए कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर सेहत के दफ्तर के एक सरकारी बयान के मुताबिक एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम अजला में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस सामने आए हैं। वजीर सेहत जॉर्ज ने कहा कि टेस्टिंग में इजाफा किया गया है। दाखिले के मामलात में कदरे इजाफा हो रहा है। ताहम मरीजों में सिर्फ 1% को ऑक्सीजन बेड और सिर्फ 1.5% को ICU बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तारीख को मिटाया नहीं जा सकता। मुगलों के बाब NCERT की किताबों से हटा दिए गए होंगे, लेकिन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भुलाया जा सकता है। उन्होंने 800 साल तक हम पर हुकूमत की। मरकजी हुकूमत ने गोश्त और इसकी मसनूआत की बरामद को हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए एक नया एजेंडा जारी किया। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ जहां गोश्त तैयार किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और पैक किया जाता है, जहां इसके पास बोर्ड के जरिए तस्लीम शुदा तंजीम का सर्टिफिकेट हो, ऐसी अशिया को हलाल सर्टिफाइड के तौर पर बरामद करने की इजाज़त होगी। वजारत तिजारत ने एक बयान में कहा कि गैर हलाल गोश्त और गोश्त की मसनूआत की बरामद के अमल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि प्रोड्यूसर यानी सप्लायर बरामद कुनिंदा को इन ममालिक की ज़रूरियात और ज़वाबित के मुताबिक ज़रूरियात पूरी करनी होगी जहां हलाल गोश्त का मुतालबा किया जाता है। इस साल के शुरू में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने गोश्त और गोश्त की मसनूआत की बरामदात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन के अमल को हमवार करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन से मुतालिक रहनुमाई खतूत का इश्तराक किया था। DGFT नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गोश्त और गोश्त की मसनूआत के हलाल सर्टिफिकेशन के अमल के लिए पॉलिसी शराइत तय की जाएगी। क़िबले अव्वल की बेहुरमती और मस्जिद अक़सा में मुसल्लियों पर तशद्दुद और गाज़ा पट्टी पर वहशियाना हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर उतर आए। लंदन से लेकर पेशावर तक एहतजाजी मुजाहरे किए गए और फ़लस्तीन की हिमायत में रैली के साथ साथ इजराइल के बाइकआउट का ऐलान किया गया। शबुख्ता कुद्स अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मुसलमानों ने इजरायली सिफारतखाने के बाहर फ़लस्तीनी झंडा उठाकर रैली निकाली और इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान के पेशावर शहर में भी मुसलमानों ने एहतजाजी रैली निकाली और इजराइल के मजालिम की मजम्मत की। ये रैली जमात इस्लामी पेशावर की तरफ से थी। वहीं तुर्किया के कई शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और इजरायली हमलों की मजम्मत की गई। मराकिश के रुबात, लबनान, उर्दन वगैरह में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उधर सोशल मीडिया पर इजरायली प्रोडक्ट के बाइकआउट की भी मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल क़िबले अव्वल में मुसलमानों ने हफ्ते को नमाज फ़जर में बड़ी तादाद में पहुंचकर अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। इस दौरान बाद नमाज फ़जर इजरायली बर्बरियत के खिलाफ सहन अक़सा में भी एहतजाज किया गया और फ़लस्तीनी अलम लहराते हुए अपने गम व गुस्से और अज़ाइम का इजहार किया। लब्बैक या अक़सा के नारों से पूरा सहन अक़सा गूंज रहा था। मुसलमानों ने इस दौरान क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए सब कुछ कुर्बान करने का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तरक्की में BRS की ख़ानदानी हुकूमत को बड़ी रुकावट करार देते हुए कहा कि मरकज़ तेलंगाना को तरक्की देने में अहद की पाबंद है, मगर मरकज़ के साथ तेलंगाना हुकूमत किसी भी तरह का ताउन व इश्तराक नहीं कर रही है। सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल का इफ्तिताह करने के बाद परेड ग्राउंड पर चंद तरक्याती कामों का वज़ीर-ए-आज़म ने रिमोट के जरिए संग बुनियाद रखा। 5 कौमी शाहराहों, बीबी नगर, एम्स के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा।
महबूब नगर डबलिंग कामों का आगाज किया। इस तरह 11,355 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज किया। झंडी लहराकर MMTS ट्रेनों का आगाज किया। बाद अज़ान जलसे आम से खिताब में तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के अदम ताउन से तरक्याती कामों में ताख़ीर हो रही है। मोदी ने कहा कि हम तरक्याती काम कर रहे हैं, चंद लोग अपने निजी कामों को खानदान के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से ताउन ना करने वालों से चौकन ना रहने की वज़ीर आज़म ने आवाम से अपील की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 12 अप्रैल को LB स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया है और ओहदेदारों को इसकी तैयारियां करने की हिदायत दी है। हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दिए जाने वाले इफ्तार पार्टी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वुज़रा और अवामी मुंतखब नुमाइंदे और आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद का दौरा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखने के लिए नहीं किया था, बल्कि तेलंगाना के खिलाफ इनके पेट में मौजूद जहर को उगलने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने परेड ग्राउंड में जो तकरीर की है, इनकी हर बात में झूठ नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से झूठी तकरीर करना इन्हें ज़ेब नहीं देता। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत हर मामले में तेलंगाना का ताउन कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमत ही मरकज़ के साथ मिलकर नहीं चल रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के इस इल्ज़ाम को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया और कहा कि मरकज़ ने गुज़श्ता 9 साल से तेलंगाना के लिए कोई एक प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के प्रोग्राम में गैर हाजिर रहे। वो बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी तैयारे के जरिए आमद के मौके पर इनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं पहुंचे। रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर अफज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने मोदी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर के गुज़श्ता 14 माह में 5वीं मरतबा चीफ मिनिस्टर ने मोदी के रियासत के दौरे के मौके पर इनके इस्तकबाल के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद और शानदार इस्तकबाल के मौके पर मोदी और तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की तस्वीर ने तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई है। जब तैयारे से उतरने के बाद बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नमस्ते किया तो मोदी ने इनका हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वक्त इनके करीब बीजेपी के रुकन राज्यसभा लक्ष्मण, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और गवर्नर मौजूद थे। संजय 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में 2 दिन जेल में रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी गिरफ्तारी पर तफसीलात हासिल की थी। इनकी जमानत पर रिहाई अमल में है और आज बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म से इनकी खुशगवार मुलाकात की तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना एमसेट 2023 में शिरकत के लिए बगैर किसी जुर्माने के फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। रियासत में इंजीनियरिंग, ज़राअत और तिब्बी कोर्सेस में दाखिलों के लिए जिन उम्मीदवारों ने एमसेट में शिरकत के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है, वो एमसेट के वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्तों में 12 और 14 अप्रैल के दरमियान तशहीह भी कर सकते हैं। दरख्वास्तें 250 रुपये जुर्माने के साथ 15 अप्रैल तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 20 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है, जबकि 2500 रुपये जुर्माने के साथ 25 अप्रैल तक और 5000 रुपये जुर्माने के साथ 2 मई तक दाखिल की जा सकती है। रियासत तेलंगाना के आलियर में पेश आए फर्जी इनकाउंटर में हलाक मुस्लिम नौजवानों के लवाहिकीन आज 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अदालती तहवील में मौजूद 5 मुस्लिम नौजवानों जिनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ थी, जो पुलिस जमीयत की निगरानी में जेल से अदालत मुंतकिल किए जा रहे थे, आलियर के करीब इनकाउंटर में हलाक कर दिए गए। इस इनकाउंटर के फर्जी होने का इंसानी हुकूक तंजीमों ने दावा किया था। TRS से BRS बनी जमात, जो सेकुलर होने और मुस्लिम अक़लियत दोस्त जमात होने का दावा करती है, इस फर्जी इनकाउंटर के कातियों को सज़ा और महलूकीन के लवाकिन को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। वक़ारुद्दीन, डॉक्टर हनीफ, सैयद अहमद, मोहम्मद जाकिर और अजहर खान को फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर के 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इंसाफ के मुंतज़िर ख़ानदान आज भी सेकुलर हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकाउंटर के बाद कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के अहकामात और हिदायत को भी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। इनकाउंटर में हलाक मुस्लिम नौजवानों के ख़ानदानों का मुस्लिम क़यादत से भरोसा उठ चुका है और रियासत के मुसलमान सेकुलरिज्म की अलमबरदार होने का दावा करने वाली BRS हुकूमत से इंसाफ के इक़दामात के मुंतज़िर हैं। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए रियासत में 24 घंटे दुकानात खुले रखने की इजाज़त देते हुए अहकामात जारी किए। इसके लिए साल में एक मरतबा 10,000 रुपये इजाफी रकम अदा करनी होगी। दुकानात को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त देने के लिए हुकूमत ने तेलंगाना शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 में तरमीम की है। इस ज़िम्मन में महकमा लेबर की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कोमोडोनी ने रहनुमाना खतूत जारी किया है। दुकानात में काम करने वाले मजदूरों और अमले का लाजमी तौर पर रिकॉर्ड रखने की हिदायत दी गई है। मजदूरों और अमले की
شناختی کارڈ جاری کرنا ہوگا. ان کی شفٹ ٹائمنگ کو بھی اس پر پرنٹ کیا جائے. محکمہ لیبر کے قوانین کے مطابق کام کے اوقات کار کو طے کیا جائے. اضافی گھنٹے کام کرنے والوں کو اس حساب سے تنخواہیں ادا کی جائے. ہفتے وار صرف ڈیوٹی کے ساتھ تہواروں پر چھٹیاں دی جائے. خاتون ورکرز اور اسٹاف کو راتوں میں ان کی مرضی کے مطابق ڈیوٹی کا تعین کیا جائے. اگر وہ راتوں میں خدمات انجام دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو ان پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے اور خواتین کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائے. نائٹ شفٹ میں خدمات انجام دینے والی خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا جائے. آل انڈیا قرات اکیڈمی و مدرسہ رحمت العلوم قلعہ گولکنڈے کے زیر اہتمام سالانہ مرکزی جلسہ قرات آج 9 اپریل بعد نماز تراویح 10 بجے شب بمقام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گراؤنڈ روبرو پولیس اسٹیشن رسالہ بازار قلعہ گولکنڈے میں منعقد ہوگا. مولانا شبیر نقشبندی محرک عالمی قرآنی و روحانی مہم صدارت کریں گے، جبکہ جلسے کی نگرانی مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی و ناظم اعلیٰ مدرسہ رحمت العلوم کریں گے. جامعہ ازہر مصر کے ممتاز قراء اکرام الشیخ مصطفیٰ السیسی الشیخ سامع زینیہ اپنے مخصوص لہن قرات کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. کنوینر جلسہ قاری سید حمید الدین قادری الملتانی نے شرکت کی اپیل کی ہے.